Assalamualaikum everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. I hope you are all doing great. A very warm welcome to our two-day molecular docking workshop, an interactive learning experience designed to introduce to the practical world of computational drug discovery. Over the next 2 days, we will explore key techniques used in modern bioinformatic research, especially protein ligand docking, which forms a backbone of structure-based drug design and contribute directly to the real-world biomedical research. Before we begin, let me introduce myself first. I am Asma Ahmed, and I am currently pursuing a BS in Bioinformatics at Qaidam University, Islamabad. I am actively involved in various scientific and youth-led organizations, including Omic Nexus, Vinyas, and Youth Empowerment, and where I contribute to scientific awareness, community engagement, and skill development. I am passionate about research, scientific communication, project coordination, and skill development, and I love participating in workshops and conferences that support professional growth. I will be serving as your co-speaker for this workshop, guiding you through concept discussion and the session flow. Now, this two-day workshop aimed to introduce participants to the fundamentals of the computational drug discovery with a dedicated focus on a molecular docking. Our objective is to help you understand drug-target interaction, explore important tools used by researchers, and learn how docking contributes to scientific publication and real-world biomedical research. Now, on the day one, we will give you the basics of molecular docking and introduce you to the essential tools and concepts used in computational drug discovery. And on the day two, we will perform hand-on molecular docking in Pyrex, analyze the results in Discovery Studio, and learn how to interpret and use these findings in research articles and academic projects. Now we begin our session. First of all, I'm going to tell you about why drug discovery matters. Drug discovery is basically crucial for improving human health and addressing common complex diseases. Traditional drug development is slow, costly, and resource intensive. Computational approaches, especially molecular docking, help scientists predict how potential drug molecules interact with biological targets, saving years of experimental effort and millions of dollars. This approach is essential for designing drugs against cancer, viral infection, neurological disorders, and metabolic diseases, and many other conditions. Now we know about what are the role of molecular docking in modern research. Before we begin our deep understanding of molecular docking, we know that molecular docking helps visualize how a ligand fit into protein active site and predict the binding strength using affinity scores. It is widely used in bioinformatics, biotechnology, medical chemistry, molecular biology, and computational pharmacology. Before we begin, I encourage everyone to stay active and participate. So please introduce yourself briefly, your name and your university in the chat box. And one thing that I'm going to share with you that if you have any question, kindly write them down and ask them at the end during the question answer segment. We will address all queries during the discussion session and you will receive your certificate at the end of the workshop. Certificates will be given only to those who attend both days of our workshop. Now it's time to introduce our esteemed speaker, Mr. Taha Javed. He is a project manager at Biotech Catalyst, where he supports the planning and coordination of scientific and research-driven projects. His work focuses on workflow organization, smooth project execution, and enabling collaborative scientific effort. He also served as a campus representative for the Healy's Biogen Institute at Africa, actively promoting scientific awareness, student engagement, and capacity building in academic communities. Alongside his professional responsibilities, he is currently pursuing his studies at Qaidam University, Islamabad, further strengthening his scientific expertise. His knowledge in molecular docking, structured bioinformatics, and computational drug discovery makes him an excellent guide for this workshop. We are truly honored to have him with us today. Mr. Taha Javed, over to you. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Okay. So thank you so much, Esma, for such a great introduction. Uh, Hello, everyone. I am Taha Javed, a project manager at Biotech Catalyst, and I work on bioinformatics related various projects at Biotech Catalyst. And I'm excited to share with you the protein ligand molecular docking and some practical insights you can take away.
सो बेसिकली इंशाल्लाह ताला हम लोग 2 days के सेशन में मॉलिक्यूलर डॉकिंग को कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लाइक प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग मेनली हम लोग बेसिक्स मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम लोग किस तरह स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको कवर करेंगे। ओके, हियर इज द एजेंडा ऑफ वर्कशॉप, 2 days ऑफ वर्कशॉप। सो बेसिकली फर्स्ट डे पे हम लोग थियोरेटिकली हम लोग कवर करेंगे कि डॉकिंग होती क्या है, प्रोटीन क्या है, लाइगेंड्स क्या है, उनके बेसिक्स क्या है और डॉकिंग की टाइप्स क्या होती हैं। हम डॉकिंग एक्चुअली कौन सी यूज़ करेंगे लाइक अपने प्रैक्टिकल सेशन में किस तरह की डॉकिंग करेंगे। उसके अलावा डॉकिंग टूल्स को हम देखेंगे, पायरेक्स है, डिस्कवरी स्टूडियो, इंशाल्लाह ताला उनको भी हम कवर अप करेंगे। और सेकंड डे पे हम प्रैक्टिकल सेशन में प्रोटीन्स प्रिपरेशन, लाइगेंड प्रिपरेशन, पायरेक्स डॉकिंग, लाइक बेसिकली हम लोग सारा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग पायरेक्स को कवर अप करेंगे और उसके अलावा डिस्कवरी स्टूडियो को हम कवर अप करेंगे कि जिसमें से हम लोग बेसिक लेवल पे ड्रग डिस्कवरी कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लाइगेंड और प्रोटीन कैसे आपस में अटैच होते हैं, इंशाल्लाह ताला हम उस चीज़ को कवर अप करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आ जाती है बात, मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग डिस्कवरी होती क्या है बेसिकली? ड्रग डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हैं सो दैट कि हम किसी डिजीज को ट्रीट कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, तो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हम कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट का रिस्क होता है उसमें ना। तो उसके लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं, एस्पिरिन यूज करते हैं, विच इज अ वेरी गुड ब्लड थिनर, जो कि हम लोग लाइक स्टार्टिंग में बिल्कुल एज अ ब्लड को थिन करने के लिए, सो दैट कि क्लॉट वहां पे ना आए। सो वो क्या करता है कि वो एज अ ड्रग वहां पे डील आउट कर रहा होता है उस चीज को, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। सो ये इस तरह की जो ड्रग्स हैं ताकि किसी ना किसी डिजीज को किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको लाइक डिजाइन करें, हम इसको कवर आउट कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली 3 तरह की चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हम एक टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, लाइक कौन सी वो प्रोटीन है या कौन सा वो एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक डिजीज को कैरी आउट कर रहा है, या फिर कौन सा वो स्पेसिफिक हम प्रोटीन कह सकते हैं जो कि उस डिजीज के अंदर हेल्प आउट कर रहा है किसी दूसरी प्रोटीन के साथ इंटीग्रेट करके। उसको हम लोग पहले देखते हैं, उस टारगेट को हम सिलेक्ट करते हैं। सेकेंडली हम जाते हैं आइडेंटिफाई द लीड डॉक्यूमेंट कंपाउंड, सॉरी। सो उन कंपाउंड्स को हम देखते हैं जो कि उस टारगेट के साथ अटैच करके उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे हम लोग उसको देखते हैं कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उन कंपाउंड्स के साथ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटेशनली टूल्स अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर डॉकिंग। अब मॉलिक्यूलर डॉकिंग यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है, जो कि एक लाइगेंड कैसे बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ। ठीक है, हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे आगे भी कि प्रोटीन क्या है, लाइगेंड क्या है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और हम बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग में देख रहे होते हैं कि लाइगेंड किस तरह प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और किस पोज के साथ बाइंड कर रहा है, और इवन कि वो कितनी स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है। ठीक है, जब डॉकिंग में हम लोग देख रहे होते हैं, जब हम ड्रग डिस्कवरी देख रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन से कंपाउंड जो हैं वो स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हैं और कौन से कंपाउंड जो हैं वो वीकली बाइंड कर रहे हैं। जो स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हैं हम ऑब्वियसली उनको ट्रीट करते हैं और फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। अब जहां तक हम पहले ड्रग डिस्कवरी लाइक ट्रेडिशनल वे हम देखें, तो उसमें क्या था कि हम लोग वेट लैब के थ्रू ड्रग डिस्कवर करते थे। और उसमें हम क्या करते थे कि डिफरेंट लाइक प्रोटीन लेते थे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट लाइगेंड्स को इंटीग्रेट करते थे वेट लैब में ना, लाइक डिफरेंट तरीकों से। और उससे क्या होता था कि हमारी एक्सपेंसिव लाइक बहुत ज़्यादा वो हो जाता था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ लाइगेंड्स, जब हम थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड हम जब यूज़ कर रहे हैं, सो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटेशनली मेथड, एक कंप्यूटेशनल टेक्निक निकाली, जो कि जिसे हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहते हैं, सो दैट कि हमें पता लगे उन सारे कंपाउंड में से उन स्पेसिफिक कंपाउंड को हम लोग ट्रीट आउट करें या स्क्रीन आउट करें जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी दिखा रही है। ठीक है, और इसके अंदर लाइक कंप्यूटेशनल मेथड है तो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एल्गोरिथम हम लोग बात करें तो वो सर्च या सैम्पलिंग एल्गोरिथम कह सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली लाइगेंड की पोजीशंस को, लाइगेंड की ओरिएंटेशंस को, लाइक किस तरह वो बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी उनके जो पोजेस को जनरेट कर रहे हैं ना, उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम लोग स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम कहते हैं बेसिकली। ठीक है, जो कि रैंडमनेस शो कर रहा होता है उसके पोजेस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है स्कोरिंग फंक्शन। ठीक है, लाइक किस बेसिस पे उनको स्कोर किया जाता है, उसमें सबसे पहले फोर्स फील्ड बेसिस आ जाती है, कि जिसमें आ जाता है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स, लाइक उसमें जो भी इंटरेक्शंस हो रही हैं लाइगेंड और प्रोटीन के दरमियान, जो भी इंटरेक्शन है, खा वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर पाई स्टैकिंग है या फिर उसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। ठीक है, तो उसके लिहाज से ये सारे जो भी स्कोर्स हैं ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम्पेरिकल स्कोरिंग फंक्शन, जिसमें हम लोग उसकी इंटरेक्शंस देखते हैं वेटेड, और लाइक वेटेड से मुराद ये कि हम उसकी ना बॉन्डिंग बेसिकली देख रहे होते हैं, कि चूंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, और वंडरवॉल लाइक
लाइक फॉर एग्जांपल वॉन्डरवॉल जो है वो एक वीक इंटरेक्शन होती है, तो हम उनकी बेसिस पे, लाइक इंटरेक्शन की बेसिस पे हम उसको देख रहे होते हैं, उसको हम लोग वेटेड या फिर अनवेटेड के लिहाज से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि डॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम लोग डॉकिंग इसीलिए करते हैं कि सो दैट के जब हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें से हमने स्क्रीन आउट करने होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो कि हमें अच्छी लाइक स्पेसिफिक इंटरेक्शन दे रही हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें कवर आउट कर रही हैं, तो फिर हम लोग इसीलिए डॉकिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम वैसे डॉकिंग को प्रेफर ना करें और कंप्यूटेशनल इसको हम ना देखें तो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है वो आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर डॉकिंग की तरफ जाते हैं सो दैट कि हम अपने मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन आउट कर सकें। उसके बाद है रिड्यूस द नंबर ऑफ वेट लैब एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेक्टेड, जो मैंने पहले बात की है। उसके बाद है लाइक जो भी बाइंडिंग के मैकेनिज्म है, लाइक किस तरह लाइगेंड जो है वो क्या वो स्ट्रांगली बाइंड कर रहे हैं, क्या वो वीकली बाइंड कर रहे हैं, अगर तो वो बाइंड कर रहे हैं तो वो किस तरह की इंटरेक्शन से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग आ रही है, या फिर उसमें किस तरह की बॉन्डिंग आ रही है, वो सारा कुछ इसमें कवर होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रोटीन्स के बारे में। अब हमने देखा तो अभी हमने देखा तो सही कि लाइक प्रोटीन्स और लाइगेंड्स को हम लोग कवर अप करते हैं। अब कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कवर अप करते हैं, तो उसके लिए भी है कि सबसे पहले तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसके बेसिक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का, लाइक बिल्कुल एक स्पेसिफिक चेन में, किंग्स उसमें कोई भी टर्न्स आउट नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, सिंपल एक स्ट्रेट चेन होती है। एक्सक्यूज मी, तो आपकी आवाज इको हो रही है। जी, मेरी आवाज ठीक हुई? आप थोड़ा सा स्टार्ट करें, देन मैं बताती हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की, कि 4 तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं और हम लोग इसमें कवर अप करेंगे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग किस तरह के, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स पे मॉलिक्यूलर डॉकिंग हम लोग कर रहे होते हैं मेनली। अब इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में उसका सीक्वेंस आता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी अमाइनो एसिड्स है वो एक बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में, कोई उसमें ब्रांच चेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल एक स्ट्रेट चेन, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है कि जिसमें हम लोग लोकल फोल्डिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान ही, फॉर एग्जांपल अल्फा हेलिक्सेस है या फिर बीटा शीट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ये राइट साइड पे एक हेलिक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मेरा आपको कर्सर नजर आ रहा होगा। जिस तरह डीएनए का हमें डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इस तरह सेट हुआ होता है। ठीक है, और ये बेसिकली इसमें NH जो ग्रुप है बैकबोन, वो बेसिकली किसके साथ बॉन्ड कर रही होती है, जो हमारे पास CO ग्रुप होता है जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं बेसिकली। और बीटा शीट जो है वो हम उसे कहते हैं कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पैरेलल और अनपैरेलल स्ट्रैंड जो है, जैसे कि ये नजर आ रहे हैं, पैरेलल और अनपैरेलल जो स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अब टर्शरी स्ट्रक्चर एक 3D फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, कि जिसमें सारे जो लाइगेंड्स हैं वो प्रॉपरली फोल्ड हुए होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब काफी सारे ऐसे अमाइनो एसिड, जैसे कि हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि बिल्कुल लाइक एक जगह पे सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते अगर वो किसी के साथ अटैच हो, तो फिर उस लिहाज से इनकी हम लोग मूवमेंट के लिहाज से इनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अटैच हुआ होता है। ठीक है, वो बना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल सब यूनिट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से मुराद ये कि जब टर्शरी स्ट्रक्चर एक हमारे पास जिसमें एक सिंपल सब यूनिट होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो उसके अंदर अगर ज्यादा उसी तरह के उस चीज को स्टेबल करने के लिए उसी तरह के ज्यादा सब यूनिट्स होंगे तो उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन सेकेंड। ओके, सो मैं PDP पे गया, यहाँ पे हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बेसिकली आते हैं। ठीक है, इसमें मैं सर्च करता हूँ सबसे पहले, जस्ट अ सेकंड। सो ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
इसे हम कह सकते हैं कि 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और ये बेसिकली स्ट्रक्चर है हम लोग ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली प्रोटीन काइनेज का स्ट्रक्चर है। और प्रोटीन काइनेजेस क्या होते हैं कि ऐसे एंजाइम्स जिनका मेन काम क्या होता है कि केमिकल ग्रुप्स ऐड करना प्रोटीन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम फॉस्फेट को ऐड अप कर रहे होते हैं, सो इसको हम लोग कवर अप कर रहे होते हैं। और अगर मैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर एग्जांपल दूं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है उसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं हाई बाइक यार। ओके, सो ये वाली प्रोटीन है जो कि ह्यूमन साइक्लोक्सिजिनेज 2 है। ये क्या काम करता है, इसमें देखें यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये ग्रीन है, एक तो ये ग्रीन कलर में है सॉरी, एक तो ये ग्रीन कलर में है और दूसरा ऑरेंज कलर में। ये दो सब यूनिट्स हैं कि एक तो ये हम कह सकते हैं दोनों सेम ही सब यूनिट होते हैं। जस्ट इनको स्टेबलाइज करने के लिए इनका जो क्रिस्टल लैटिस है उसको पूरा करने के लिए पीडीबी के अंदर हम लोग इसको डिफरेंट लाइक फॉर्म में शेयर कर रहे होते हैं। अब आगे आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमने चार स्ट्रक्चर्स तो पढ़ लिए, लेकिन आगे हम इसको कैसे कवर अप कर रहे होते हैं। हम लोग डॉकिंग के अंदर किस स्ट्रक्चर को हम लोग काम कर रहे होते हैं। डॉकिंग के अंदर हम लोग मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल एक सब यूनिट पे काम करना होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे काम करना होता है। हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी हम लोग कवर अप करते हैं, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स उस सूरत में होते हैं कि जब दो स्पेसिफिक सब यूनिट के दरमियान उसकी एक्टिव साइट पाई जा रही हो। मतलब एक्टिव साइट एक ऐसी साइट होती है जहां पे जो हम कह सकते हैं लाइगेंड या फिर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो जाके बाइंड करता है और उस प्रोटीन की जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज करता है, या फिर उसको जो भी डिजीज कॉज कर रही है उसको बेसिकली चेंज करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि प्रोटीन फाइल्स के बात करते हैं। अभी मैंने पीडीबी के अंदर प्रोटीन फाइल निकाली थी। उस पीडीबी फाइल के अंदर हमें 3D कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं प्रोटीन्स के। अब ये जैसे राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर देखिए कि डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। पिंक में एक सब यूनिट है, ब्लू में एक है, पर्पल में एक है, ग्रीन में एक है, और ये उसके ऊपर एक लाइगेंड अटैच है। अब ये जहां पे लाइगेंड अटैच है ना, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एक एक्टिव साइट है, एक पॉकेट है जहां पे जाके लाइगेंड बाइंड किया, और लाइगेंड जो है वो डिफरेंट इंटरेक्शन से बाइंड करता होता है। ठीक है, सो इसमें काफी सारी इंटरेक्शंस आ सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो सकती है, पाई पाई स्टैकिंग हो सकती है। ये काफी सारी इंटरेक्शन हो सकती है। इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे कवर अप करेंगे। और उसके अलावा इस पीडीबी फाइल के अंदर क्या क्या होते हैं, इसमें चेन्स होती हैं, डिफरेंट चेन्स होती हैं प्रोटीन्स की। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है उसके अंदर डिफरेंट 5 चेन्स है, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए वो सारी चेन्स होती हैं। उसके अलावा इनके डिफरेंट हेटेरोएटम्स होते हैं। हेटेरोएटम से मुराद अगर कोई ऐसे प्रोटीन्स जिनको कोई स्पेसिफिक मेटल अगर कवर आउट कर रहे हैं, या फिर कोई मेटल जो है उसकी एक्टिव साइट को चला रहा है, तो फिर उसके अंदर वो एज अ हेटेरोएटम होगा। ठीक है, उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ताकि उनको स्टेबलाइज करें। ठीक है, और उसमें क्लीनिंग, हाँ क्लीनिंग की यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब जब हम डॉकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं, अपने जो भी प्रोटीन है उसको हम क्लीन आउट कर रहे होते हैं। और वो क्लीनिंग में 3 स्टेप्स आते हैं मेनली। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को क्यों रिमूव करते हैं? वो हम इसलिए रिमूव करते हैं ताकि जब लाइगेंड बाइंड कर रहा हो प्रोटीन के साथ, वो उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना कॉज करे। ठीक है, कोई भी उसके अंदर ऐसी कोई इंटरेक्शन ना आ जाए, कोई भी इंटरेक्शन उसके अंदर ना कोई डिस्टॉर्शन ना ले आए, सो दैट के उसका स्कोर पे कोई इश्यू ना आए, हमें एक प्रॉपर एक परफेक्ट आंसर मिले। उसके बाद हम लोग अनवांटेड लाइगेंड्स या फिर हेटेरो एटम्स, ऐसे एटम्स जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होते, जैसे कुछ ऐसी एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पे हमें मेटल्स की जरूरत नहीं होती, और कुछ होते हैं जो कि मेटल डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर उस लिहाज से हम लोग लिटरेचर के थ्रू हम इसको देख रहे होते हैं, सारा कुछ लाइक ये सारा कुछ मौजूद होता है। हम इसको कवर अप कर रहे होते हैं, और फिर उस लिहाज से हम उसमें से जो भी हेटेरोएटम्स है उसको रिमूव कर रहे होते हैं। या फिर हेटेरोएटम अक्सर ऐसे होता है कि हम हेटेरोएटम्स को रिमूव नहीं करते। जैसे एक प्रोटीन है 3spu, उस नाम उसका नाम है, पीडीबी बेसिकली नाम है उसका। और वो बेसिकली प्रोटीन काम करती है NDM1 के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। अब ये जो NDM1 बेसिकली है ना, ये किस लिए इस्तेमाल होती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए कॉज कर रही होती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसकी एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक मेटल होता है जिसे हम कहते हैं जिंक एटम। अगर वो जिंक एटम वहां पे मौजूद है तब ही जो स्पेसिफिक हमारी जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव होगी। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि अगर वो हेटेरो एटम वहां पे मौजूद नहीं होगा तो फिर वहां पे वो काम नहीं करेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसमें उसने पहले बोल दिया, उसने ना इसमें
लाइक यहाँ पे लिखा होगा कि जिंक डिपेंडेंट है। Just a second. ठीक है, इसकी जो जो भी स्पेसिफिक एक्टिव साइट है वहां पे हमें जिंक मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्टिव साइट को बेसिकली एक्टिव कर रहा होता है, उसको लाइक रेगुलेट करने में मदद कर रहा होता है, जहां पे भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। अगर तो हम उसको रिमूव कर देंगे तो हमें उसकी लाइक एक्चुअल जो उसके नेचुरल जो लाइक वो प्रोटीन किस तरह काम कर रही है उसको वो चीज कवर नहीं करेगी। अगर हम उसको उस हेटेरोएटम को रिमूव कर देंगे तो ये बेसिकली हेटेरोएटम का ये काम होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हम लोग कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोटीन्स फाइल को क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग डिस्कवरी स्टूडियो यूज करते हैं, डिस्कवरी स्टूडियो, और इंशाल्लाह हम लोग कल कवर अप भी करेंगे डिस्कवरी स्टूडियो को। और उसके अलावा कैमेरा एक्स भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइगेंड्स क्या होते हैं। लाइगेंड्स ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन की एक्टिव साइट को बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये मिलके किससे मिलके बने होते हैं? लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे मिलके बने होते हैं और ये डिफरेंटली ऑर्गेनाइज होते हैं। और अगर अब हम बात करें कि लाइगेंड्स की, मैंने आगे टाइप लिखे हैं, दे कैन बी अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड पेप्टाइड्स। अब इसमें सारी टाइप्स के बारे में अगर हम देखें तो बिल्कुल एक ब्रीफ सारी इंट्रोडक्शन देखें तो अल्कलॉइड्स की अगर बात करें तो ये नेचुरल प्लांट के कंपाउंड होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकोलॉजी इफेक्ट बेसिकली कॉज करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कैफीन की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्लांट कंपाउंड है। उसके बाद अगर हम लोग फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो ये प्लांट टाइप एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो कि सेल्स को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। ठीक है, डिफरेंट काफी सारे, अब हम कह सकते हैं कि कैंसर की एक डिजीज है जिसमें क्या होता है कि कैंसर जो है वो आसपास के जो नॉर्मल सेल है उनको डिस्ट्रॉय आउट कर देते हैं और उसको फिर लाइक अपने जो सेल है उनको फिर मल्टीपल सेल्स को आगे जनरेट कर रहा होता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटी को जो कि उस जगह पे ना फिर लाइक कॉज कर रहा होता है। कैंसर जो है इस तरह फिर स्प्रेड आउट कर रहा होता है। सो इसमें फ्लेवोनॉइड्स जो है वो काफी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना। उसके अलावा हम अगर स्टेरॉइड्स की बात करें तो स्टेरॉइड्स ऐसे हार्मोन्स लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं, हम लोग इसको एज अ सिंथेटिकली भी रख सकते हैं। उसके अलावा टर्पिनॉइड्स की अगर बात करें तो वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट से ही मिले होते हैं। और जैसे कि हम लोग लाइक नेचुरल कंपाउंड्स हम जैसे हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, इवन के हम लोग रेजिन जो कि जिसे हम ग्लू कहते हैं, ठीक है, नेचुरल ग्लू कहते हैं, वो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो टर्पिनॉइड्स होते हैं। उसके अलावा पेप्टाइड्स की बात करें तो पेप्टाइड्स हमें नाम से पता लग रहा है कि छोटे अमाइनो एसिड चेन्स होते हैं लाइक जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से बेसिकली जुड़े होते हैं। अब इनको डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि अगर जो भी लाइगेंड्स है इनको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि हम सिंपल पबकेम पे से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कैम्बल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कल पबकेम यूज करके हम डिफरेंट लाइगेंड को इंशाल्लाह हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे और हम इसको कवर आउट करेंगे। अब अगर आ जाता है कि अगर हम लोगों ने इसको सिंथेटिकली कोई स्पेसिफिक लाइगेंड को हमने कवर अप करना है, लाइक उसको बनाना है सिंथेटिकली, तो उसके लिए कैमड्रो एक बहुत अच्छा टूल है जिसके हम लोग डिफरेंट लाइक कंपाउंड्स वगैरह को यूज करके हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देख के हम उसके लाइगेंड जनरेट कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। या फिर उसके अलावा एक एवोगैड्रो है जो कि लाइगेंड्स को जनरेट करने में, लाइगेंड्स को जोड़ने में, ठीक है, काफी सारे लाइक यूज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर फॉर्मेट्स की बात करें तो 4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं इनको डाउनलोड करने के। STF है, MOL है, PDB है, स्माइलीज है। सो ये सारे इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि मस्ट बी ऑप्टिमाइज ड्यूरिंग बिफोर डॉकिंग। डॉकिंग से पहले हम लाइगेंड को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब हमने प्रोटीन को तो पता लग गया कि हमने प्रोटीन को क्लीन किया था। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइज का ये मतलब है कि हम अपने लाइगेंड्स की एनर्जी को थोड़ा सा कम करते हैं। लाइक एनर्जी को कम करने से मुराद ये है, जब हम नेचुरली अगर देखें ना कंपाउंड को, तो नेचुरली कंपाउंड जो है वो अपनी लो एनर्जी में पाए जा रहे होते हैं। हम सबको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लाइक द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। ठीक है, अब वो जितनी कम एनर्जी होगी उतना रिएक्शन जो है वो अच्छा चलेगा, उतना नॉर्मल होगा, ठीक है, उतना बेहतरीन चलेगा। सो बेसिकली हम लोग डॉकिंग को इसलिए प्रेफर आउट करते हैं, हम लोग इसीलिए इसके अंदर हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने लाइगेंड को, ताकि उसकी हम एनर्जी को थोड़ा बहुत बिल्कुल एक सेट कर सकें और फिर हम उसके ऊपर डॉकिंग परफॉर्म करें ताकि हमें बिल्कुल जो भी रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक नेचुरल कंपाउंड के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं टाइप ऑफ इंटरेक्शन की अगर बात करें तो 4 तरह की इंटरेक्शन होती हैं। सबसे पहले आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और लाइक जितनी भी दूसरी अदर बॉन्डिंग्स होती हैं, और ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। पोलर हम लोग कहते हैं, हम सबको ये पता है कि प्रोटीन के अंदर 2 तरह की लाइक फोल्डिंग्स होती हैं। एक तो होती है इनर प्रोटीन होती है और दूसरा उस पे आउटर होती है। आउटर की अगर बात करें तो वो वाटर से एक्सपोज होती है जिसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो कि वाटर लविंग होती है। और जो इनर वाली होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक कहते हैं, विच इज मतलब जो कि फेयर आउट करती है वाटर से। ठीक है, जो कि जिसको जो कि वाटर के बिल्कुल उल्टी साइड पे होती है, दूसरी साइड पे होती है।
ठीक है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स को कवर आउट कर रही होती है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करें, तो हाइड्रोफोबिक नाम से पता लग रहा है, लाइक वाटर हेटिंग कह सकते हैं हम लोग, या वाटर फियरिंग कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोफोबिक से मुराद ये है कि ऐसी इंटरेक्शंस जो कि नॉन पोलर रेजिड्यूज में हो, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर से एक्सपोज ना होते हो, उन्हीं के दरमियान होती हो, जैसे हम लोग मैंने बोला कि प्रोटीन का जो इनर साइड है ना, उसको बेसिकली कवर आउट करे। नेक्स्ट आ जाता है आयनिक इंटरेक्शन, जो कि लाइक ऑपोजिट चार्जेस में आ रही होती है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, जो जिस तरह हम लोग अगर मैग्नेट को देखें तो मैग्नेट में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, जो कि आपस में अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये उसी तरह की इंटरेक्शंस होती हैं जो कि लाइक ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है पाई एंड पाई स्टैकिंग। पाई एंड पाई स्टैकिंग में ये होता है कि जो हमारे स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो लाइक एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, उनको बेसिकली उनकी इंटरेक्शंस को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक रिंग्स। लाइक उसमें जो आपस में इंटरेक्शन आ रहा होता है उसे हम कहते हैं पाई पाई स्टैकिंग। नेक्स्ट आ जाता है वाटर वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अगर हम बाकी सारी फोर्सेस है इसको कंपेयर करें तो ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। अक्सर ऐसे होता है कि काफी सारे अगर ऐसे दो कंपाउंड हैं जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनमें एक लाइक इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक एक लाइक ऑपोजिट फोर्स है, तो एक ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि उनमें ना एक छोटी सारी, एक बिल्कुल हम कह सकते हैं वीक सारी फोर्स एक जनरेट हो जाती है, जो कि हम कहते हैं कि कोई एक ऑपोजिट पार्शियल चार्ज एक आ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो वंडरवॉल फोर्स होती है, जो कि बहुत वीक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम कवर करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग को। मॉलिक्यूलर डॉकिंग बेसिकली चार तरह की होती है। सबसे पहले रिजिड डॉकिंग। रिजिड डॉकिंग में क्या है कि लाइगेंड और प्रोटीन, प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट है और जो लाइगेंड है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे कि हमने लाइक पहले एक दो टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, दो हमने बेसिकली हमने पढ़े थे। एक तो था ना कि जिसमें पढ़े थे कि इंड्यूस फिट मॉडल था, और दूसरा लॉक एंड की मॉडल था। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता था कि सेम टाइप ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो सेम टाइप ऑफ एंजाइम के साथ जाके एंजाइम बाइंडिंग साइट पे अटैच होता था, और फिर वो आगे काम लाइक स्टार्ट होता था। उसी तरह रिजिड डॉकिंग भी वैसे ही है। और फ्लेक्सिबल डॉकिंग में क्या होता है कि लाइगेंड जो है वो अपनी अपनी जो भी शेप्स है उसको थोड़ा सा चेंज करता है, उसको थोड़ा सा अपने जितने भी एंगल्स हैं या फिर टॉर्शंस हैं उनको बेसिकली रोटेट करते हैं या फिर बेंड करते हैं, और वो फिर आगे उसके साथ ना उसको फिर डॉक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लाइंड डॉकिंग एंड फोकस डॉकिंग। कल हम लोग इंशाल्लाह फोकस डॉकिंग पे काम करेंगे। ब्लाइंड डॉकिंग ये होता है कि जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन है, हम उस पूरी प्रोटीन के ऊपर अपना ग्रिड बॉक्स रखते हैं, ठीक है। ग्रिड बॉक्स मतलब उस पूरे प्रोटीन को कवर कर रहे होते हैं, और फिर लाइगेंड को हम लोग लाइक उसको डॉक कर रहे होते हैं, और वो फिर लाइगेंड जहां पे उसको लाइक जगह मिल रही होती है ना लाइक अटैच होने की, तो वो उस लिहाज से हमें आंसर कर देता है। और दूसरा फोकस डॉकिंग क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टारगेट हम लोग एक्टिव साइट को टारगेट कर लेते हैं, और उसके ऊपर हम पे डॉकिंग परफॉर्म करते हैं। एक हम लोग उसको टारगेट करने का एक तरीका ये होता है कि हम उस पर ना ग्रिड बॉक्स बेसिकली जनरेट कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ग्रिड बॉक्स क्या होता है। ग्रिड बॉक्स बेसिकली, अगर हम ग्रिड बॉक्स की बात करें, सो ये हम लोग कहते हैं कि ये किसी भी सर्च रीजन को, किसी भी रीजन को अगर सर्च करना हो और उसको हम लोग बेसिकली स्पेसिफाई करना हो कि स्पेसिफिकली इस रीजन में ही लिगैंड बाइंड करना चाहिए, तो इसलिए होता है ये ग्रिड बॉक्स होता है, ठीक है। और अगर और इसमें ना बेसिकली ये होता है कि अगर तो लिगैंड बहुत ही स्मॉल है, अगर तो हम लोग ग्रिड बॉक्स को बहुत स्मॉल रखते हैं, अगर प्रोटीन के ऊपर रखते हैं, तो उस पे क्या है कि लिगैंड प्रॉपर्ली बाइंड नहीं करेगा। और अगर बहुत बड़ा रखते हैं तो वो एक्यूरेसी को डिक्रीज करेगा। लाइक अगर जिसमें हमने जब हमने अभी बात किया कि ब्लाइंड डॉकिंग जो होती है, उसको बेसिकली उसमें ये होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि एक्यूरेसी प्रॉपरली नहीं आ रही होती, क्योंकि जब हमारे पास पूरी प्रोटीन होती है तो बहुत टाइम ले रहा होता है लॉगिंग लाइक डॉकिंग के लिए, और वो बहुत ज्यादा लाइक टाइम लेता है उस चीज को ना करने के लिए, और बहुत ज्यादा लाइक उसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है कि बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी बेसिकली कहते हैं कि कितनी स्ट्रांगली वो बाइंड कर रहा है हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके लिगैंड के साथ। और इसमें जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उतनी स्ट्रांगली बाइंड करता है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली हमें बता रही होती हैं नेचुरल में जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे नेगेटिव शो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कम एनर्जी होती है उतनी ज्यादा वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे भी वो सॉरी स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि जितना ज्यादा नेगेटिव कंपाउंड, जितना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग आएगी। फॉर एग्जांपल -6 टू -7 हम कहते हैं कि मॉडरेट डॉकिंग है। -7 टू माइनस, एक्सक्यूज मी तो जी जी ये आप प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें ग्रिड बॉक्स वाला, ये मैसेज आया हुआ है पार्टिसिपेंट की तरफ से। जी मैं करता हूँ। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे ग्रिड बॉक्स की बात कर रहे थे। ग्रिड बॉक्स बेसिकली उस स्पेसिफिक रीजन को
टारगेट करता है कि जिस पे हम चाह रहे हो, अगर एक प्रोटीन है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि उसकी फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है, उसके अंदर 5 चेन्स है, हम उसके 5 डिफरेंट सेगमेंट्स बना लेते हैं किसी प्रोटीन के। हम कहते हैं कि हमने सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर ही डॉकिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ग्रिड बॉक्स सिर्फ सेक्शन ए के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे लाइगेंड बाइंड हुआ है, ये मेरी आपको कर्सर नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेज है, ये एक प्रोटीन है, इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट को हमने बाइंड लाइक यहाँ पे डॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ग्रिड बॉक्स एक ऐसा एक बॉक्स होता है जो कि सिर्फ उस प्रोटीन के पार्ट को कवर कर रहा होता है, और फिर उसके ऊपर हम डॉकिंग परफॉर्म करते हैं, सो दैट के बिल्कुल एक हम लोग टारगेट स्पेसिफिक इस पे डॉकिंग कर सके, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इसको कवर अप करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो आपको इससे ज्यादा इस चीज की आपको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि डॉकिंग का बेसिकली वर्कफ्लो क्या होता है। सबसे पहला होता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना, ठीक है। जब प्रोटीन हमने सिलेक्ट कर ली कि किस लिए हम लोग प्रोटीन, किस डिजीज को हम टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम उसकी डिजीज को, उसकी हम देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक टारगेट है जो कि डिजीज कॉज कर रही है, तो उस प्रोटीन को हमने टारगेट कर लिया। प्रोटीन को टारगेट करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हम प्रोटीन को क्लीन करते हैं, लाइक उसमें से वाटर रिमूव, मैंने पहले ही बताया कि वाटर रिमूव कर देते हैं, हेटेरो एटम्स को रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन हम क्यों ऐड करते हैं, सो दैट के इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांगली हो सके, ठीक है। जहां पे भी लाइगेंड आए तो उसको प्रॉपरली उस पर इंट्रैक्शन आ सके, ठीक है। उसके अलावा लाइगेंड लाइगेंड को हम लोग रिट्रीव करते हैं फ्रॉम पबकेम, मैंने बात की है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कैम्बल से भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो फिर हम लाइगेंड्स को फिर हम प्रिपेयर भी करते हैं, पायरेक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और लाइक ओपन बैबल के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग लाइगेंड्स को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग मेनली हम उसकी एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी मिनिमाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हम उनके जो भी लाइगेंड्स हैं उनको, जो भी पीडीबी बेसिकली उसका स्ट्रक्चर में हम लोग उसको सेव करते हैं, और उसको फिर हम उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट करते हैं पीडीबी क्यूटी, मतलब उसका फाइल फॉर्मेट चेंज करते हैं। फाइल फॉर्मेट चेंज करने का यहाँ पे क्या लाइक है कि पीडीबी एक हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसके 3D कोऑर्डिनेट्स हैं। अब क्यू और टी, यहाँ पे क्यू से मुराद उसके चार्जेस हैं, ठीक है, और टी से मुराद उसकी टॉर्शन है। मतलब कि एक पहले ऐसा पीडीबी एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसने हमें सिर्फ एक उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, लेकिन पीडीबी क्यूटी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसकी बॉन्ड एंगल्स भी हैं, और वो जो स्पेसिफिक लिगेंड है वो मूव भी कर सकता है। अब हमने डॉकिंग के अंदर क्या देख रहे होते हैं कि डिफरेंट पोजेस के साथ वो बाइंड कर रहा होता है, तो वहां पे ये लाइक काम आता है कि जब हम लोग पीडीबी क्यूटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो उस चीज को कवर अप कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डॉकिंग को रन करते हैं, जो भी हमें स्पेसिफिक, हाँ उससे पहले तक कि हम लोग ग्रिड बॉक्स को डिफाइन करते हैं। ग्रिड बॉक्स हम लोग डिफाइन करते हैं, या तो अगर हम ब्लाइंड डॉकिंग करें तो पूरी प्रोटीन पे कर देते हैं, अगर हम लोग अगर साइट स्पेसिफिक डॉकिंग करें तो हम लोग सिर्फ उस साइट पे हम लोग कवर अप करते हैं जो कि लाइक जिस पे हम लोग करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट है। नेक्स्ट हम उसको डॉकिंग को रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोडॉक वीना, ठीक है, जो कि एक इंटीग्रेटेड टूल है पायरेक्स के साथ ही। और उसके अलावा फिर हम उसके पोजेस को एनालाइज कर देते हैं, उसकी आरएमएस डी वैल्यूज आती हैं और एफिनिटीज आती है। वो इंशाल्लाह ताला हम कल इंशाल्लाह लाजमी कवर करेंगे उस चीज़ को, और आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे आरएमएस डीज क्या होती हैं, और बाइंडिंग एफिनिटीज क्या होती हैं, और किस तरह रिजल्ट्स को हम लोग रीड आउट करते हैं। और लास्ट में फिर हम लोग उसकी विजुअलाइजेशन रीड करते हैं, और विजुअलाइजेशन रीड करने का बेसिकली काम ये होता है कि हम लोग डिस्कवरी स्टूडियो के थ्रू बेसिकली कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डॉकिंग के टूल्स की अगर बात करें, तो डॉकिंग के टूल्स को अगर हम कवर अप करें तो प्रोटीन प्रिपरेशन के लिए पीडीबी से हम प्रोटीन रिट्रीव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन का स्ट्रक्चर रिट्रीव करने के लिए पीडीबी है। नेक्स्ट डिस्कवरी स्टूडियो प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। काइमेरा एक्स जो है वो भी प्रोटीन को क्लीन करने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जितना ज्यादा क्लीन स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा हायर डॉकिंग की एक्यूरेसी आएगी। उसमें क्या किया जाता है, वाटर को रिमूव करना ताकि हिंड्रेंस ना आए, जो भी अनवांटेड हेटेरो एटम्स हैं उनको रिमूव करना, सो दैट के अगर हिंड्रेंस नहीं होगी तो उतने ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसी तरह फिर लाइगेंड को प्रिपेयर करने के लिए लाइगेंड को जो टूल्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले सबसे पहले पबकेम आ जाता है जहां से हम लोग लाइगेंड्स को डाउनलोड करते हैं। कैमड्रॉ है जहां पे हम लोग जो भी सिंथेटिक लाइगेंड्स को हम लोग बेसिकली खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, लाइक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि किस स्पेसिफिक लाइगेंड में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर इस तरह हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पीडीबी से या फिर एसटीएफ से जो पीडीबी में चेंज करते हैं अपने लाइगेंड का फॉर्मेट, जो कि हम लोग पीडीबी क्यूटी में भी चेंज करते हैं, वो बेसिकली हम लोग ओपन बेबल के थ्रू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर पायरेक्स के अंदर हम लोग एनर्जी मिनिमाइजेशन करते हैं,
और वो एनर्जी मिनिमाइजेशन जो है वो बेसिकली कवर करती है फोर्स फील्ड को। और अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फोर्स फील्ड क्या होती है, कि उसकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पोटेंशियल, मतलब उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, वन टू वन फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, उन चीजों के बेसिस पे हम इसको आगे लाइक इसकी एनर्जी को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग दो टूल्स इस्तेमाल करेंगे कल इंशाल्लाह। सबसे पहले पायरेक्स है, पायरेक्स के थ्रू हम लोग सारी डॉकिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी पाइथन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सो इसलिए हम लोग इसको इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। इसे हम लोग देखेंगे कि ऑटोडॉक वीना के थ्रू स्कोरिंग फंक्शन कैसे होता है, स्कोरिंग कैसे होती है, उसके रिजल्ट्स हम लोग सारे विजुलाइज करेंगे। और उसके बाद डिस्कवरी स्टूडियो आ जाता है। डिस्कवरी स्टूडियो के अंदर हम लोग जो भी प्रोटीन का लाइक जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है उसको हम लोग विजुलाइज करेंगे, उसकी इंटरेक्शन जो प्रोटीन और लाइगेंड के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, सो दैट के फिर आगे इसको इन ये चीज़ों के बाद फिर हम इसको आगे फिर पब्लिकेशन की तरफ और फिर लाइक थोड़ा बहुत इसको और ज़्यादा स्क्रीन आउट करके फिर हम इसको पब्लिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेपरेशन के टू लाइक मेनली क्या होते हैं। प्रोटीन प्रेपरेशन मैंने पहले बात किया कि इसको डिस्कवरी स्टूडियो में लोड करते हैं। डिस्कवरी स्टूडियो में लोड करने के बाद वाटर को रिमूव करेंगे, अनवांटेड लाइगेंड्स को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे पायरेक्स के अंदर। और उसके बाद फिर लाइगेंड को प्रिपेयर करेंगे, पायरेक्स में लेके आएंगे और फिर उसके बाद डॉकिंग कर लेंगे उसकी एनर्जी मिनिमाइजेशन करने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉकिंग एंड विजुअलाइजेशन पायरेक्स के थ्रू एंड डिस्कवरी स्टूडियो के थ्रू होगा। और पायरेक्स के थ्रू तो हम लोग ग्रिड बॉक्स वगैरह सेट करके कर लेते हैं ना, इस पे डॉकिंग कर लेते हैं। लेकिन डिस्कवरी स्टूडियो पे अगर देखें तो हम लोग इसके ऊपर सारी जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है या फिर हाइड्रोफोबिक कॉन्ट्रैक्ट्स हम कहते हैं उसे, वो है, उन चीजों को देख रहे होते हैं कि कहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक लिगेंड है किस इंटरेक्शन के थ्रू वो बाइंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर की टेक अवे की बात करें तो हम लोग आज आज हमने क्या क्या कवर किया कि बेसिकली हमने ड्रग डिस्कवरी देखी कि होती क्या, ड्रग डॉकिंग क्या होती है, लाइगेंड्स बेसिकली हमने देखे क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, लाइगेंड्स और प्रोटीन के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं वो सारी हमने कवर की, ठीक है। और डॉकिंग का बेसिकली हमने वर्कफ्लो सारा कवर आउट किया। सो ये सारा इसमें था। अब हम लोग क्या करते हैं कि आई थिंक सो सबके पास लैपटॉप होंगे, तो हम क्या करते हैं कि दो स्पेसिफिक जो मैंने अभी आपको लाइगेंड दो मैंने आपको बताए थे ना, टूल्स बताए थे, तो उनको हम लोग डाउनलोड करना सीखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला टूल है पायरेक्स। सो यहाँ पे सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाएं, वहां पे जाके पायरेक्स को सर्च आउट करें। ओके, तो पायरेक्स को जब सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पे फोर्स सोर्स फॉर्ज के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे पायरेक्स का हमें टूल मिल जाएगा। और यहाँ से फिर हम लोग इसको क्लिक करेंगे और ये हमें एक नेक्स्ट पेज दे देगा जिसके अंदर हम लोग फिर आगे इसको लेके चलेंगे। ओके, सो ये हमारी बेसिकली जो भी वेबसाइट है ये ओपन होगी। यहाँ पे हाँ ये आ गया ऑप्शन डाउनलोड का, कि मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी सिंपल। अब उसके बाद जो exe फाइल आएगी उसे सिंपल हम लोग अपने सिस्टम में रन करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हमने दूसरा जो डाउनलोड करना है, दूसरा डिस्कवरी स्टूडियो है। सिंपल हम लोग इसमें सर्च करेंगे डिस्कवरी स्टूडियो डाउनलोड। डिस्कवरी स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पे जो वेबसाइट है ना डेसॉल्ट सिस्टम्स के नाम से, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग बेसिकली डाउनलोड करेंगे। मैं आपको एक बार सारा कुछ एक आपको मैं यूट्यूब की वीडियो भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, सो आप वहां से भी देख के कर सकते हैं अगर अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास अगर अभी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल ईमेल, यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल ईमेल आप लोग ऐड कर सकते हैं, अपनी ईमेल भी इवन के आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी अपनी ईमेल है, ये मैंने यहाँ पे ऐड करी। ऐड करने के बाद उसने मेरे से पूछा कि कंट्री एंड एरिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर उसने इंडस्ट्री का पूछा है तो इंडस्ट्री जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर और सब इंडस्ट्री में हम कवर करते हैं फार्मास्यूटिक्स एंड बायोटेक। ये करने के बाद एग्री किया एंड देन इसको सबमिट कर दिया। जब ये हम करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा जो कि हमें शो करा रहा होगा कि लाइक डाउनलोडिंग का शो करा रहा है। ये थैंक यू एक पेज है और इसके बिल्कुल नीचे
लाइक मूव करेंगे तो उसने हमें विंडोज का दे दिया 64 बिट और दूसरा उसने लिनक्स का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लेंगे और लिनक्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विंडोज का डाउनलोड स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये भी स्टार्ट हो गया और फिर सिंपल ये EXE फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो गई, तो फिर आगे हमने इसको ऐसी बिल्कुल आगे लेके चलना है। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। ठीक है, इसको हम लोग तो हाँ, काइंडली जो डिस्कवरी स्टूडियो वाला है ना, उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी मैं कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्च करना है डिस्कवरी स्टूडियो। ठीक है, यहाँ पे जो वेबसाइट है डेसॉल्ट सिस्टम्स के नाम से, यहाँ पे जाना है। फ्री डाउनलोड बायोवियर डिस्कवरी स्टूडियो, इसके ऊपर जाना है और ये हमें इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। अब इधर हमने क्या करना है कि यहाँ पे उस पहले हमारे से ईमेल मांगेगा। मैंने ईमेल उस पर लगाई थी तो उसमें पहले से ही वो जनरेट हो गया हुआ, सो लॉगिन हो गया हुआ। सो वहाँ पे आपने सिंपल अपनी ईमेल डालनी है, कोई अपनी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है डालने, यूनिवर्सिटी की ईमेल डालने की जरूरत नहीं, आप जो खुद ही ईमेल यूज करें आप सिंपल वो भी डाल सकते हैं तो वो चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद यहाँ पे अपनी कंट्री का नेम डालना है, जैसे पाकिस्तान, एंड इंडस्ट्री मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये मेरी इंडस्ट्री आ गई। अब इंडस्ट्री में सब इंडस्ट्री में मैं सर्च करता हूँ फार्मास्यूटिक्स एंड बायोटेक, ये मेरी सब इंडस्ट्री आ गई। तो ये तीनों चीजें हो गई मेरी। उसके बाद मैं इसको एग्री करता हूँ, लाइक इसने बेसिकली टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी बेसिकली इसने बताया हुआ है। अगर किसी का दिल है तो इसको रीड कर ले, नहीं तो फिर इसको सिंपल ओपन करके लाइक ऑन करके और फिर इसको सिंपल सबमिट कर दे। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो एक थैंक यू का पेज आ जाएगा। उस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर उसके बाद ये विंडोज के लिए आ गया और दूसरा ये लिनक्स सिस्टम के लिए आ गया। विंडोज के लिए सिंपल यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसको हम दबाएंगे और यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल लाइक दिस वन, इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे सिस्टम में ना बेसिकली वो फाइल्स दिखा रहा होगा, जिस तरह के मेरे पास एक ये फाइल है, ये डिस्कवरी स्टूडियो की फाइल है। ओके, ओके, ये डिस्कवरी स्टूडियो की फाइल है एक मेरे पास, और दूसरी फाइल है मेरे पास पायरेक्स की, लाइक दोनों सेटअप है। सिंपल मैं क्या करूंगा कि डिस्कवरी स्टूडियो वाली को डबल क्लिक किया, जो भी EXE फाइल है उसको मैंने ओपन किया। उसने सबसे पहले मेरे से पूछा, उसने मेरे से इंफॉर्मेशन मांगी लाइक डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, यस। और उसके बाद बस फिर उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना और लास्ट में हम फिनिश करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और सेम एज इट इज वही प्रोसेस हम लोग पायरेक्स पे भी करेंगे। जब पायरेक्स की डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद इस पे फिर हम लोग आगे लाइक आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और लास्ट पे हम लोग इसको इंस्टॉल करके फिनिश कर देंगे और इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। बाकी मैं इंशाल्लाह एक यूट्यूब की एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और वहाँ पे आपको इन नज़र आ जाएगा वो सारा कुछ, और वो सारा कुछ इंशाल्लाह आपसे कवर आप लोग कवर अप कर लेंगे इसमें। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट। अगर आप लोगों को किसी टूल के डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आई या आपने नहीं देखा तो काइंडली बता दें, हम उसको एक दफा दोबारा दिखा देते हैं। ऑल्सो मैं दोनों डाउनलोडिंग के लिए ना मैं आप वीडियो आपसे मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब की वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो वहां से भी आप लोग देख के डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। सो इंशाल्लाह आप उस चीज को आप फॉलो अप कर लीजिएगा। तो हाँ, काइंडली टूल्स के नेम शेयर कर दें जो आपने अभी सारे बताए हैं, वन बाय वन, जस्ट नेम। जी मैं ना चैट में लिखता हूँ, वेट। जी मैंने चैट में लिख दिया पायरेक्स, और दूसरा है बायोविया डिस्कवरी स्टूडियो। तो हाँ, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं आपको रीड करके बताऊं? जी जी, मैं रीड कर रहा हूँ जस्ट a second। जी, ओके। जी बोलिएगा प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, डज टॉकिंग गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स? नहीं, कोई भी कंप्यूटेशनल टूल जो कि हम लोग एल्गोरिदम्स के लाइक एल्गोरिदम पे चला रहे होते हैं, सो वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है, कभी भी हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देता।
इसीलिए जब हम लोग डॉकिंग परफॉर्म कर लेते हैं, कंप्यूटेशनल काम कर लेते हैं, कंप्यूटेशनली हम लोग सिर्फ स्क्रीन आउट कर रहे होते हैं अपने लाइक जो भी कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास 1000 कंपाउंड्स थे, उसमें से हमने स्क्रीन आउट कर लिया 100 कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल निकले जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग दिखा रहे हैं। अब हम सिर्फ जो वेट लैब के अंदर काम करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग काम करेंगे, वो सिर्फ 100 कंपाउंड्स के ऊपर करेंगे, ना कि हम लोग 1000 कंपाउंड्स पे करेंगे। इससे हमें कॉस्ट भी लाइक बचती है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत लाइक कम होता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं आ रहा होता। Next question, Toha. Then how many % results are expected before docking? जी काइंडली रिपीट कीजिए प्लीज। How many % results are expected before docking? बिफोर डॉकिंग, ओके, सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मेनली जब हम लोग देख रहे होते हैं ना अपना लाइक ड्रग डिस्कवरी हम देख रहे होते हैं, तो डॉकिंग के थ्रू हम जब उसे करते हैं तो हम लोग, ये उनका क्वेश्चन है कि हम लोग कितने परसेंट है कि वो डॉकिंग के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, सो हम ये नहीं कह सकते कि इसके डॉकिंग के परसेंटेज जो है वो 90%, एक स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं हम कह सकते, लेकिन हाँ बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करते होते हैं एल्गोरिदम्स, क्योंकि वो उसकी इंटरेक्शन बेसिस पे कर रहे होते हैं। लाइक वो स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है, स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर रहा, लाइक दूसरी तरह लाइक वीक बाइंडिंग शो करा रहा है, सो फिर उस लिहाज से वो उसके बाइंडिंग स्कोर्स आते हैं। अक्सर ऐसे होते हैं कि बहुत वीकली इंटरेक्शन शो हो रही है, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक है ना लाइक बाइंडिंग रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है, तो वो इसमें थोड़ा सारा इशू आ जाता है। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि उसकी जो वीक फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लाइक वो बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा होती हैं, वो वाली जो वीक फोर्सेस होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं उस लाइगेंड के साथ जो बाइंड कर रही होती हैं। सो इसी वजह से अक्सर बाइंडिंग के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग जितने भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स हम लोग उसकी इंटरेक्शंस देख रहे होते हैं, हम उसको फिर वेट लैब की तरफ लेके जाते हैं और फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटली सारा देखते हैं। और जब हम लोग लाइक ड्रग डिस्कवरी कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग कंप्यूटेशनली के साथ साथ हम लोग उसको वेट लैब के भी कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि जी 90% इसके रिजल्ट अच्छे हैं तो हम लोग सिर्फ इसी रिजल्ट के बेसिस पे हम उसके आगे पब्लिकेशन की तरफ ले चलें। Okay, Toha. Next question. How we choose exact force field according to protein type and ligand? ओके, सो ये बेसिकली हम लोग ना लिटरेचर से देख रहे होते हैं कि अपने लाइगेंड्स को देख रहे होते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक हम लोग कहते हैं कि कोई डिजीज ले लेते हैं। ठीक है, कैंसर की डिजीज है, हम कहते हैं कि डिजीज, कैंसर की डिजीज क्या करती है कि पास के जितने भी सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, हम लिटरेचर से उस चीज को कवर अप करते हैं, लिटरेचर से उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या लाइक हम लोग क्या क्या उसमें हम लोग कवर अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या कहा था कि कैंसर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हम लोग वो यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो कि सेल्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से। सो वहां पे बेसिकली वो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ना, सो हम लोग उस तरह कंपाउंड हम लोग वहां पे यूज करते हैं जो कि उस कैंसर को ट्रीट कर सके। ठीक है, Okay, Toha. Next question ये है, how can we know if the ligand and protein will have strong interaction before going through whole docking procedure? Is there any way to know beforehand by looking at their characteristics from PDB and PubChem? हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हम उसको कवर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने प्रोटीन ले ली, कैंसर रिलेटेड हमने एक ऐसी प्रोटीन ले ली जो कि कैंसर कॉज कर रही है। ठीक है, हम फिर ऐसे लाइक लाइगेंड्स हम देख रहे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज में आ रहा होता है। जैसे फ्लेवोनॉइड्स मैंने बात की थी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो फिर हम लोग फ्लेवोनॉइड्स की फैमिली में से हम लोग फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या हमने ये वाले कंपाउंड्स को, फिर हम लोग फ्लेवोनॉइड्स की फैमिली वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम लोग उसको स्क्रीन आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई लेदर से अगर टर्पेनॉइड्स हम लोग यूज करना चाह रहे हैं, टर्पेनॉइड्स के अंदर जो है वो हम लोग अगर उसको ट्रीट करने में कोई मदद कर सकते हैं उस कैंसर के अंदर, हम उसको कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हमें लिटरेचर से मिलता है, क्योंकि लिटरेचर के अंदर सारा कुछ एक्सपेरिमेंटली काफी सारा कुछ पड़ा होता है। सो इंशाल्लाह फिर हम लोग फिर उस चीज से कवर अप करते हैं। और इंशाल्लाह कल हम लोग जब हम लोग कर रहे होंगे मॉलिक्यूलर डॉकिंग, हम लोग जब परफॉर्म कर रहे होंगे, सो मैं इंशाल्लाह एक दो पेपर्स भी आप लोग को दिखाऊंगा कि जिसमें जो भी हम स्पेसिफिक हम लोग टेक्निक, जो भी स्पेसिफिक प्रोटीन और उसके हम लोग लाइगेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो उसके भी लिटरेचर्स हम लोग मैं निकाल के रखूंगा और वो आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह वो अपने लाइगेंड्स को सिलेक्ट किया और किस तरह अपने प्रोटीन को सिलेक्ट किया। सो इंशाल्लाह वो उधर भी कवर अप होगा। Okay, Toha. Next question है, doping is only used for drug discovery? डॉकिंग ड्रग डिस्कवरी के लिए हाँ काफी जगह पे यूज हो सकती है। लाइक हम लोग अगर कंपाउंड्स को हम लोग इंटरेक्शंस देखना चाह रहे हो कोई स्पेसिफिक, इवन कि हमने प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखना चाह रहे हो, सो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम लोग अभी ड्रग डिस्कवरी कवर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ड्रग डिस्कवरी में ही इसको हम लोग लेके चलेंगे।
Next question, how we will use synthetic molecules as ligands? Can you please show it once? सिंथेटिक मॉलिक्यूल मेरे अब जेन में नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल है सिंथेटिक। कोई भी ऐसा वो एक प्रॉपर एक पूरा बन जाता है कि जिसमें हमें ना पूरा एक लिगेंड को डिजाइन करना पड़ता है। तो आई थिंक हम ये कल दिखाएंगे सारा प्रोसीजर। होप जी सो ठीक है। उनको आंसर मिल जाएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डॉकिंग आल्सो बी यूज्ड टू डॉक एपिटोप्स टू टारगेट प्रोटीन इन वैक्सीन डिजाइन? हाँ जी, यूज हो सकती है। Okay, next question है, is it acceptable to dock only ECD of receptors? क्या चीज दोबारा बोलिएगा? Is it acceptable to dock only ECD of receptor? ईसीडी मतलब? ईसीडी बताइएगा, Next, जिसको क्वेश्चन पूछे मैंने पूछेगा, बताइएगा। can you explain again PDB QT? I can't understand this. ओके ओके, पीडीबी, ओके ओके। ओके, तो बेसिकली जब हम लोग लाइगेंड्स को डाउनलोड करते हैं ना, जैसे मैं, हाँ, लाइगेंड को जब हम डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं पीडीबी फॉर्मेट में। ठीक है, पीडीबी फॉर्मेट मैंने आपको पहले बताया है, जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन है, अगर कोई लाइगेंड है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होते हैं कि हमारे जो प्रोटीन है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे उस वो प्रोटीन जो है वो फोल्ड हुई हुई है, उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड है वो कैसे आए हुए हैं। ठीक है, वो सारा कुछ उसमें लेके मौजूद होता है। अब जब हम लोग पीडीबी से पीडीबी क्यूटी में चेंज होते हैं, तो क्यू टी से मुराद, क्यू से क्या मुराद होता है? चार्जेस। ठीक है, और टी से मतलब होता है टॉर्शन। टॉर्शन मतलब कि डिफरेंट, लाइक वो मूवमेंट उसमें हो सकती है उस लाइगेंड के। पहले एक ऐसा लाइगेंड था जो कि बिल्कुल स्टिफ था। ठीक है, बिल्कुल एक हम कह सकते हैं रॉ फॉर्म में, बिल्कुल एक अपनी जगह पे रहने वाला। उसका जब हमने उसका उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, तो उसके जो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ताकि जब हम डॉकिंग परफॉर्म कर रहे हो, डॉकिंग होती क्या है बेसिकली, मैंने पहले ही बताया है कि हम देख रहे होते हैं कि लाइगेंड कैसे बाइंड कर रहे हैं प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो वो डिफरेंट टॉर्शंस पे, डिफरेंट लाइक डायरेक्शन से, डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ वो बाइंड कर रहा होता है। सो उस चीज में हम लोग पीडीबी क्यूटी यूज कर रहे होते हैं। सो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीडीबी एंड पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट। ओके, तो आई थिंक टाइम हो गया है, हम लोग कंक्लूड कर लें। जो रिमेनिंग आप लोगों के क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह जो है ना ग्रुप में एड्रेस कर लेंगे, और नहीं तो आप लोग अपने क्वेश्चन राइट डाउन रखें। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन है उसमें थोड़ली इसको देख लेंगे, और होप सो कि आप लोगों के जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो आपको सेशन में मिल जाएंगे। ओके, तो हाँ, कैन आई कंक्लूड? जी ठीक है, आप कंक्लूड कर लें। Thank you so much everyone for joining our session. So we conclude our day one of this workshop. I hope you all found today's session informative, insightful and engaging. We explored the foundation of computational drug discovery, learned the core concept of molecular docking, and prepare all the necessary tools for tomorrow practical work. Thank you so much, Marwa, founder of Collab and Rise, for organizing this esteemed session. And tomorrow we will apply everything we learned today through a hand-on docking session, followed by analysis in Discovery Studio. Thank you all for your participation and active engagement. Inshallah, we will see you tomorrow at the same time. Get ready, because tomorrow we dive into the real practical work, and I hope it becomes a valuable learning milestone for all of you. Thank you so much again for joining our session. थैंक यू सो मच Allah एवरीवन ज्वाइन Hafiz. करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अस्मा फॉर द कोऑर्डिनेशन। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई आंसर दैट। Okay, Allah Hafiz. See you tomorrow, guys. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।